Hey guys, very good morning everyone. Good morning guys. Very good morning. So दोस्तों welcome to this super awesome YouTube channel of India's largest online education platform, Unacademy. And guys, this is Darshan Jain, your educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. And guys, today I am live for the fifth lecture of our unit 6 of partnership, डेथ ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं. फ्रेंड्स, our partnership series is going to continue for another 2 to 3 days now. ठीक है, if possible we'll complete it by tomorrow. अगर नहीं होता है तो maybe in coming 2 to 3 days we are going to complete the entire topic. ठीक है, क्योंकि डेथ इज अ important topic और मैं चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में करें. I don't want to give any homework from this particular topic. ठीक है, नाउ वन शॉर्ट रिवीजन फॉर एवरेज ड्यू डेट. दोस्तों, ये सेशन में आज लेने जा रहा हूं 3 बजे, जहां पे लगभग 3 घंटे में हम पूरा एवरेज ड्यू डेट पढ़ लेंगे. ठीक है, फ्रॉम बेसिक्स टू एंड पूरा हम लोग कर लेंगे दोस्तों इन जस्ट 3 आवर्स. ठीक है, अगर पहले आपने नहीं भी किया होगा ये टॉपिक तो भी चलेगा. वी आर गोइंग टू कवर द इंटायर टॉपिक इन 3 आवर्स. ठीक है, वी हैव कमेंस्ड अवर आरटीपी एमटीपी बैच, जिसके 2 वीक्स हो चुके हैं दोस्तों. अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस बैच में हम लोग कवर करवा रहे हैं आरटीपी एमटीपी और पीवाईपी. आई हैव आल्सो स्टार्टेड विद मिडनाइट रिवीजन सीरीज ऑन प्लस फ्रॉम 27th ऑफ अक्टूबर, जहाँ पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अकाउंट्स के करवा रहा हूँ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. The features of this midnight revision series is it has started from 27th of October. 30 नवंबर तक चलेगा दोस्तों अनअकैडमी प्लस पर. 20 सेशन होंगे उसमें फॉर 2 आवर्स ईच, और 3 वन शॉट मैराथन्स भी होंगे. We are going to cover important topics from study material, PYP, RTP and MTP in this particular revision series. The timing will be 10 p.m. to 12 a.m. and friends, notes will be provided which are going to be very helpful for you for last day revision. And friends, you can score 60 plus marks on the basis of midnight revision series, mini marathons and day before marathon. These are the various topics that I am going to cover. NPO एक लेक्चर बचा है जो कि हम लोग कल कर लेंगे. फ्रॉम 1st of November I will be starting with consignment. एवरेज ड्यू डेट का वन शॉट आज होने वाला है. ठीक है, 3 PM ऑन यूट्यूब. रीइश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स उसके बाद शुरू करूंगा. देन अकाउंट करंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, पार्टनरशिप अकाउंट, सोगरा एंड ट्रू और फॉल्स. Now to attend midnight revision series, 900 MCQs batch of maths and economics and RTP MTP batch, you will have to buy a subscription. The subscription is also available now for 2 months, which is going to cost you around 8,100 after applying my code, which is DKJ10. You can also go for an iconic subscription, जहां आपको मिलेगा पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल. अगेन द प्राइजेस आर अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन. You can also go for a test series product for which you will be ending up paying 1350 for just 3 months, and you can also go for combo subscription जिसमें फाउंडेशन और इंटर दोनों का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा at around 45,000 only for 2 years. Yes, do not forget to apply my code. It's DKJ10. Do watch our results for June 22 guys. Amazing result we gave in June 22, expecting the same in December. And these are our stars who have scored 90 plus marks in accounts in June 22. Guys, do like, share, subscribe both these YouTube channels. These are a dedicated channel for CA Foundation for by Bahubali team, and do join this Telegram channel as well. More than 28,000 students have already joined the channel, and I have been receiving link, notes and updates. And do follow me on the Unacademy's learning app. My ID is C_Darshan_Jain. Same is the ID on Telegram as well as Instagram. Okay, so let's begin death of a partner. दोस्तों, इसमें पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिया है JLP. अब शुरू करेंगे आज से SLP. व्हाट वाज JLP? JLP क्या था? ओके, वेरी गुड मॉर्निंग. ACP अरे नाम तो सही लिखना है यार. रणवीर गुड मॉर्निंग. भूमि गुड मॉर्निंग. अंशु, रजत, परिमा गुड मॉर्निंग. शेख, मूसा गुड मॉर्निंग गाइस. चलो आ जाओ. सेवरल लाइफ पॉलिसी मीनिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. नाउ JLP क्या था? जॉइंट लाइफ पॉलिसी. ये क्या है? SLP. इसका फुल फॉर्म क्या है? सेवरल लाइफ पॉलिसी. व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन JLP एंड SLP? ये दोनों लाइफ पॉलिसीज पार्टनर्स को कवर करती है ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है,
दोनों में भी पैसा पार्टनरशिप फर्म पे करेगा और दोनों मैच्योर्ड होने के बाद पैसा पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा। ठीक है ना। डिफरेंस इज जेएलपी में बाय डिफॉल्ट सारे पार्टनर्स कवर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी, जेएलपी में तीनों की लाइफ कवर होगी, ए की भी, बी की भी और सी की भी। लेकिन एसएलपी में पॉलिसी अलग अलग होती है, ए की पॉलिसी अलग होगी, बी की अलग होगी, सी की अलग होगी। तो सर ऐसा क्यों किया जाता है? एक बात को समझना, मान लो जेएलपी में 3 पार्टनर्स ए बी सी, तीनों की लाइफ कवर हो रही है तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा। इज दैट फाइन? उसका प्रीमियम क्या होगा? ज्यादा होगा। अब यहाँ पे ए और बी और सी पार्टनर्स है, हो सकता है कि ए और बी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो सिर्फ ए और बी की ही एसएलपी निकाले, सी की एसएलपी निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज ही इज हेल्दी। ठीक है, तो देयर में बी रीजंस। तो जेएलपी भी कर सकते हैं, एसएलपी भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ध्यान दीजिएगा। Individual life policy is an assurance policy covering the life of the partner individually. If the firm has insured the partner's life severally and charged the premium to profit and loss account, the executors of a deceased partner are entitled to claim a sharing. ए बी सी पार्टनर है, तीनों की एसएलपी है, सी ऊपर चला गया, सी के ऊपर जाने के बाद सी की बीवी ए और बी के पास आ जाएगी और उससे क्या लेगी? सी के एग्जीक्यूटर का किस बात पर हक होगा? इफ द पार्टनर इज हैविंग अ एसएलपी, द क्लेम रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ मैच्योर्ड पॉलिसी एंड द सरेंडर वैल्यू ऑफ अनमैच्योर्ड पॉलिसीज ऑफ द अदर पार्टनर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे पॉलिसी ए की हो, चाहे पॉलिसी बी की हो, चाहे पॉलिसी सी की हो, पैसा कौन पे कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म मतलब तीनों पार्टनर्स। अगर ए बी और सी तीनों का एसएलपी है, सी ऊपर चला जाता है तो सी के पॉलिसी के पैसे मिलेंगे, वो पैसे किस में बटेंगे? तीनों पार्टनर्स में। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सर पॉलिसी तो सी की थी, सी ऊपर गया तो वो पूरा पैसा सी को मिलना चाहिए। नहीं, क्या सी ने पैसे पे किए? ना, पैसे किसने पे किए? सबने। पैसे किसको मिलेंगे? सबको। तो सी को क्या मिलेगा? सी के एग्जीक्यूटर को उसकी पॉलिसी में उसका शेयर। अब बची हुई 2 पॉलिसी भी है, ए और बी, उनका भी पैसा पार्टनरशिप फर्म ने भरा है, मतलब उनका भी पैसा सी ने भरा है, तो उनकी सरेंडर वैल्यू में उनका उसका शेयर। तो डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को एसएलपी में क्या क्या मिलेगा? उसकी मैच्योर्ड पॉलिसी में उसका शेयर और बाकी के पार्टनर्स के पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू में उसका शेयर। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना एक बार। यहां पे भी वही 3 मेथड होंगे दोस्तों, यहां पर भी वही 3 मेथड, ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस मेथड, सरेंडर वैल्यू मेथड एंड जेएलपी रिजर्व मेथड। ठीक है, समझ लेना दोस्तों, एक बार पढ़ लेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? I'll be back in 2 minutes। जब तक ये पढ़ो और चैट बॉक्स में बताना कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। चलो गुड, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। आ जाइए दोस्तों। XYZ were sharing profits and losses in the ratio of 1/2, 1/3 एंड 1/6। मतलब रेशियो हो गया वो 3:2
2:1 respectively. The firm had insured the partner's life severally, X for 10,000, Y for 7,500 and Z for 5,000. तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया है, X, Y और Z तीनों की अलग अलग SLP निकाली हुई है। X की 10,000 की है, Y की 7,500 की और Z की 5,000 की है। द प्रीमियम्स वेर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड है, द प्रीमियम्स वेर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से मेथड में वी चार्ज प्रीमियम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, फर्स्ट। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। The surrender value of each policy as on 31st March 17 is 50% of the sum assured। ठीक है, 31st March 17 के दिन सरेंडर वैल्यू कितना है, अपने अपने पॉलिसी का 50%, मतलब X का है 5,000, Y का है 3,750 और Z का है 2,500। Y and Z decided to share profits and losses equally in future. X dies on 31st March 17. Give the necessary journal entries. Give the necessary journal entries. कैसे करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे, X ऊपर गया मतलब 10,000 रुपए आएंगे। ठीक है, और वो 10,000 कौन बांट लेगा, X, Y, Z, किस रेशियो में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 3:2:1। और दोस्तों बचा अब दोनों के पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू। अब पॉलिसी तो सरेंडर नहीं कर रहे, पॉलिसी तो कंटिन्यू है। अब मैजिकल एंट्री आ जाएगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट, Y अकाउंट डेबिट, Z अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट फॉर सरेंडर वैल्यू इन अनमैच्योर्ड पॉलिसीज। ठीक है, सरेंडर वैल्यू ऑफ अनमैच्योर्ड पॉलिसी कितना है, सरेंडर वैल्यू 3,750 Y का, और Z का होगा दोस्तों 5,000, टोटल कितना 8,750। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। ठीक है, चलो दोस्तों कर लेते हैं, आ जाओ। क्या एंट्री होगी, पहली फर्स्ट एंट्री विल बी सर Z का, यस 2,500, सॉरी 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 2,500 होगी, 50% होगा, 50% होगा गाइस। इट विल बी 6,250। यस करेक्ट है अश्मित, यस यस 6,250। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, जो पॉलिसी मैच्योर्ड हो गई, कौन सी पॉलिसी मैच्योर्ड हो गई, X की, 10,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मंगाने हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। एंट्री हो जाएगी दोस्तों, एंट्री हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 10,000 टू X कैपिटल, टू Y कैपिटल, टू Z कैपिटल, किस रेशियो में, 3:2:1। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, 5,000 रुपया, X इंटू 2, 3,333 इंटू 1, 1,667। being claimed due on X death credited to partners in their profit sharing ratio. I hope the first entry is clear. ये क्या दे दिया हमने, मैच्योर्ड पॉलिसी में सबका शेयर। अब अनमैच्योर्ड पॉलिसी का भी शेयर देना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों पॉलिसी सरेंडर नहीं कर रहे हम लोग, सरेंडर करते पैसे आते बांट लेते, लेकिन सरेंडर नहीं कर रहे, तो क्या होगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो,
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो दोस्तों निकालना होगा हमें गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, निकाल लो दोस्तों। x y z, what is new ratio? Equally 1/2 1/2. What was old ratio? 3:2:1. So 3/6 2/6 and 1/6। ये हो गया 3/6, निगेटिव है मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये हो जाएगा 1/6 गेनिंग रेशियो और ये हो जाएगा 2/6 गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो इज 1:2। ठीक है, सो फ्रेंड्स x लेकर जाएगा 3/6, 3/6 ऑफ व्हाट 3750, y के पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू और 2500 z के पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू, टोटल 6250। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1042, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2083, 2x कैपिटल 3125। कैसे आया चेक, 6250 इंटू 3/6, 3125 x को देना है और ये 3125 कौन बियर करेगा, गेनिंग पार्टनर। कौन है गेनिंग पार्टनर, y और z। किस रेशियो में, 1:2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 1042 इंटू 2 2083। समझ में आया सभी को? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, x y z were sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. The firm had insured the partners' lives severally. The surrender value of the policies appearing in the balance sheet as on 31st March 17 were x 5000, y 3750, z 2500. The surrender value represent 50% of the sum assured in each case. Y and Z decided to share equally in future. X dies on 31st March 17. Give the necessary journal entries. कौन सा मेथड है ऑफ SLP, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड? सेकेंड मेथड ना। एक चीज समझना, बैलेंस शीट के असेट साइड में तीन पॉलिसी दिख रही है, एक्स की 5000, y की 3750 और z की 2500। इसका मतलब इतना शेयर सबको मिल गया है, 5000 x के पॉलिसी का सबको मिल गया है, y के पॉलिसी का 3750 मिल गया है और z के पॉलिसी का 2500 सबको मिल गया है। क्योंकि अगर वो असेट में आ रहा है मतलब डेबिट हुआ होगा और क्रेडिट किसको हुआ, पार्टनर्स कैपिटल। अब x ऊपर चला गया, x के पॉलिसी के कितने रुपए आएंगे, 10,000 रुपए आएंगे। क्या पूरे 10 बांटेंगे क्या, नहीं, उसमें से 5 ऑलरेडी बांट दी हमने, -5000 हो जाएगा, बचा हुआ 5000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी दोस्तों, बनाओ फॉर्मेट फॉर अराउंड हाफ पेज, बनाओ दोस्तों जर्नल का फॉर्मेट फॉर अराउंड हाफ पेज।
यस, डन एवरीवन। चलो पहली एंट्री क्या होती है? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एक्स SLP, एक्स लाइफ पॉलिसी 10,000 being claimed due on X death credited to X SLP। अब मुझे बताना ये एंट्री होने के बाद X के SLP में कितना बैलेंस बचता है। सोच समझकर जवाब देना। इस एंट्री के बाद X के SLP में कितना बैलेंस बचता है? केयरफुली आंसर मी दिस क्वेश्चन। ये एंट्री होने के बाद कितना बैलेंस बचेगा इन XSLP? 5,000 डेबिट बैलेंस या क्रेडिट? 5,000 डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? 5,000 बचेगा, डेबिट या क्रेडिट? कितना बैलेंस बचेगा? गई भैंस पानी में। अब क्या बेसिक्स पढ़ाओ क्या? बेसिक्स पढ़ाओ अभी? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस पढ़ाओ? वेरी बैड। अरे भाई असेट साइड में था, असेट साइड में था मतलब 5,000 डेबिट बैलेंस पहले, फिर अब ये एंट्री में XSLP 10,000 क्रेडिट हुआ, 10,000 क्रेडिट तो कितना बैलेंस बचेगा? 5,000 क्रेडिट बैलेंस। अब ये 5,000 क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है क्या? चलो कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकेंड एंट्री एक्स लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 5,000 टू एक्स कैपिटल 2,500, क्योंकि रेशियो क्या है? 3:2:1। 5,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 2,500 टू 1,667 एंड 8,33 being transfer of balance on in X life policy account to partners in PSR। और क्या मिलना चाहिए X के एग्जीक्यूटर को? और क्या मिलना चाहिए? Y और Z की पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू में उसका शेयर। क्या जर्नल एंट्री होगी? अब आपकी कॉमन सेंस टेस्ट कर रहा हूं मैं। Y और Z के सरेंडर वैल्यू में भी उसको शेयर मिलना चाहिए। बताओ क्या जर्नल एंट्री होगी? आई एम टेस्टिंग योर कॉमन सेंस। महक गुप्ता नो एंट्री। ओहो। एनी अदर आंसर? खुशी नो एंट्री, अंशु नो एंट्री। क्या बात है, ग्रेट गोइंग गाइस, कीप इट अप। जब ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में वो सरेंडर वैल्यू आ गया Y और Z का, इसका मतलब ये है कि X को उसका शेयर ऑलरेडी मिल चुका है। नो एंट्री विल बी पास्ड। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? कोई एंट्री पास नहीं होगी, ऑलरेडी जो मिलना था मिल गया। यस, चलो ग्रेट।
तो दोस्तों यहां खत्म हो जाता है मेरा जेएलपी और एसएलपी। जेएलपी एसएलपी कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। जब भी पार्टनर की डेथ होगी तो साल शुरू होने से लेकर अप टू द डेट ऑफ डेथ, और रिटायरमेंट के केस में भी ऐसा हो सकता है, साल शुरू होने से लेके अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर को उसका शेयर देना होगा इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में उसको उसका शेयर देना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे देते हैं, किस बेसिस पर देते हैं, लेट्स सी। द कैलकुलेशन ऑफ आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट्स अर्न्ड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 2 स्टेप्स। पहला, determination of profits of the firm from the last balance sheet to the date of death or retirement. Subject to such agreement, such profit may be determined either on time basis or on sales basis using previous year's profit or average profit of past years. दो तरीके निकालने के, एक है टाइम बेसिस और एक है सेल्स बेसिस। टाइम बेसिस मतलब टाइम कितना इन्वॉल्व हुआ है उस पे कंसीडर किया जाएगा, और सेल्स मतलब लास्ट ईयर का सेल्स क्या था, इस साल का सेल्स क्या हो रहा है, इस बेसिस पर हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। टाइम बेसिस पर अगर निकालना है तो कैसे होगा, कॉन्सेंट्रेट प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट। ठीक है, पिछले साल का क्या प्रॉफिट हुआ, मान लो पिछले साल का प्रॉफिट हुआ 1,00,000 रुपया, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो अब इस साल पार्टनर 3 महीने जिंदा था, तो 3 महीने का कितना, 1,00,000 रुपया 12 महीने का था पिछले साल का प्रॉफिट या पिछले कई साल का एवरेज प्रॉफिट। तो एक महीने का हो गया 8,333 इंटू 3, 25,000 रुपया पूरे फर्म का प्रॉफिट हो जाएगा। ये किसका प्रॉफिट है, बहुत से बच्चे यहां मिस्टेक कर देते हैं, वो बोलते हैं कि ये डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट है ना, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है फॉर 3 मंथ्स। अब इसमें डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालना है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन सेल बेसिस। सेल बेसिस कैसे निकालोगे, पिछले साल का सेल 3,00,000 रुपया था, एक मिनट, पिछले साल का सेल 3,00,000 रुपया था और हमने प्रॉफिट कमाया 50,000। तो इस साल अप टू द डेट ऑफ डेथ सेल हुआ है 1,50,000 रुपए का। तो दोस्तों कितना प्रॉफिट होगा, 25,000। आई होप यू गॉट दिस। पिछले साल 3,00,000 का सेल था तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो अभी 3 महीने में 1,50,000 का सेल हुआ, तो दोस्तों ये प्रॉफिट कितना होगा इस साल का, आ गया आंसर 25,000। ये 25,000 भी किसका प्रॉफिट है, पूरे फर्म का, नॉट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, एक बार आपने अमाउंट निकाल लिया प्रॉफिट का अप टू द डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, देन फिर रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर का शेयर निकालना होगा। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट is profit calculated in step 1 multiplied by रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका शेयर मिल जाएगा। अब उसकी अकाउंटिंग करने के 2 तरीके हैं। पहला, जर्नल एंट्री पास कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर,
या फिर सबसे बेस्ट हमारी मैजिकल एंट्री, गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो भी डिसीज पार्टनर का शेयर आएगा गेनिंग पार्टनर उसको गेनिंग रेशियो में डेबिट कर लेंगे। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। सर यहां मंथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या? वही तो है ना बेटा, ये सेल बेसिस है। मंथ का कैलकुलेशन कहां आएगा? टाइम बेसिस पे। यहां हम टाइम को कंसिडर नहीं करते हैं। वी डू नॉट कंसिडर टाइम हियर। आई होप यू आर गेटिंग इट। वही तो मतलब है। फिर ऑन सेल्स बेसिस का मतलब क्या हुआ फेरी? आई होप यू गॉट दिस। टाइम सिर्फ कहां कंसिडर होगा? टाइम बेसिस में। सेल्स बेसिस में वी डू नॉट कंसिडर टाइम। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन ऑन दिस। इलस्ट्रेशन 8 पर आएंगे सभी लोग। XYZ were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. X died on 31st March 2016. Calculate his share of profit during the accounting year 2016. Accounting year 2016 मतलब year starts on January 1 and ends on 31st December. तो कितने महीने जिंदा था पार्टनर इन द अकाउंटिंग ईयर? 3 महीने। नाउ प्रॉफिट निकालना है। पहला केस, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेट is to be estimated at a sum calculated on the average of last 3 completed year profits. The book showed the profit for the calendar year as under 3 साल का प्रॉफिट पिछले उसका एवरेज लेना है। तो 3 साल कौन से हो जाएंगे? 2015, 2014 एंड 2013। निकालो दोस्तों एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? 8000 प्लस 7600 प्लस 9000 डिवाइडेड बाय 3। कितना आया? 8200। तो दोस्तों 8200 प्रॉफिट होगा 12 महीने का। तो 3 महीने का कितना? इट विल बी 2050। पहले केस में कितना आया? 2050 टाइम बेसिस। समझ में आया क्या सभी को? टाइम बेसिस समझ में आया क्या सभी को? चलो करते हैं, आ जाओ दोस्तों। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ 3/12 months multiplied by average profit of last 3 years. Now profit up to the date of death कितना हो जाएगा? It will be 2050। डर लग रहा है 3 days, ऐसे लग रहा है कि पूरा न्यू पढ़ रहे। अरे हैव कॉन्फिडेंस तीशा, तुम कर लोगी बेटा, तुम कर लोगी। जस्ट बी पॉजिटिव, जस्ट बी पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट। नाउ एक्स का शेयर कितना होगा दोस्तों? कैपिटल अकाउंट 1025 एंड सेकेंड ऑप्शन Y capital account debit, Z capital account debit to X capital account 1025. Magical entry, gaining partner debit in gaining ratio to sacrificing partners in sacrificing ratio. ठीक है, लैग है, सब तो सही है। सब तो सही है यार। पहले आया था, चलो ठीक है नेक्स्ट।
अब केस बी करते हैं. केस बी इज ऑन सेल बेसिस. If the partnership deed provided that the share of profit till the date of death is to be estimated at a sum calculated on the sales till the date of death by applying the ratio of net profit to sales for the last accounting year. सेल फॉर 3 months, जब तक पार्टनर की डेथ नहीं हुई थी, 3 महीने का सेल था 30,000 रुपए, और पिछले साल का सेल था 3,60,000 और प्रॉफिट आया था 54,000. तो कैसे करेंगे इसको? 54,000 का प्रॉफिट आया था 3,60,000 के सेल के लिए, तो इस साल 3 महीने का सेल 30,000 हुआ है, तो कितना प्रॉफिट होगा? 54,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 इंटू 30,000, कितना आ जाएगा ये? 4,500. किसका प्रॉफिट है ये? पूरे फर्म का. इसमें किसका शेयर निकालना है? डिसीज्ड पार्टनर का. आई होप सेल्स बेसिस पे कैसे प्रॉफिट निकालते हैं समझ में आया आपको. सेल्स बेसिस, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज इक्वल टू सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट. तो वो हो जाएगा दोस्तों 4,500. एक्स का शेयर कितना होगा उसमें? 3/6, 2250. जर्नल एंट्री दो ऑप्शन. पहला पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 2250. सेकेंड ऑप्शन गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? चलो नेक्स्ट. Come to illustration 9. A, B, and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. B died on 31st March 12. The profits from 1st January to 31st March were rupees 4,500. A and C decided to share future profits in the ratio of 3:2 respectively with effect from 1/4/2012. Give the necessary journal entry to record the B's share of profit to the date of death. दो तरीके हैं. पहला पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर. पहला ऑप्शन क्या है? पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और ये पीएल सस्पेंस कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में. टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितना है? 2/6, 4,500 इंटू 2/6, 1,500, 1,500. ये हो गया पहला तरीका. दूसरा तरीका गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. व्हाट इज द न्यू रेशियो? ए बी सी. 3/5, 2/5 डैश बी, क्योंकि रिटायर हो डेथ हो चुकी है उसकी. ओल्ड रेशियो क्या था? 3/6, 2/6 एंड 1/6. ये हो गया दोस्तों 2/6 निगेटिव, मतलब सैक्रिफाइसिंग. गेनिंग कितना होगा? 30 इंटू 3/30, एंड इधर होगा दोस्तों 30, 12 माइनस 2/30. ठीक है. तो भाई गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2. सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन होगा ए अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 1,500. और ये 1,500 किस रेशियो में जाएगा? 3:2 है ना. 6 इंटू 2 12, 12 माइनस बाय 5. ओहो 7 है. सॉरी गाइस, सॉरी. 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 5 7. करेक्ट है गाइस.
3:7 में कर दो इसको, 3:7, तो 1500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, 450 रुपीज, इंटू 7, 1050। आई होप दोनों भी तरीके समझ में आए। आई होप दोनों भी तरीके आपको समझ में आ गए। कोई भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है, बोथ आर करेक्ट। यस, 3:7 इज अ गेनिंग रेशियो। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। लिख लेंगे, जर्नल बना लेना है दोस्तों, जर्नल बना लेना है फॉर अराउंड हाफ पेज, जर्नल बना लेना है फॉर अराउंड हाफ पेज। यहाँ पे पीएल सस्पेंस अकाउंट क्यों यूज किया? ये टेम्पररी प्रॉफिट है, ये टेम्पररी अकाउंट है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब क्लोज करते हैं हम लोग अश्मित? साल के एंड में। साल खत्म हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज कर सकेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज कर सकेंगे क्या? नहीं। तो क्या करते हैं, अभी हम एक टेम्पररी अकाउंट यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और फिर जब साल के आखिरी में जब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज होगा, तब बी का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा वो बी को क्रेडिट ना करते हुए पीएल सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे, ताकि पीएल सस्पेंस अकाउंट जो पहले डेबिट बैलेंस था अब वो नील हो जाएगा जब मेन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंड में क्लोज करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट which is open to distribute the profit of deceased partner or retiring partner. I hope you got this. ठीक है, आई होप यू गॉट दिस अश्मित। पीएल बेटा बीच में क्लोज नहीं होता है, पीएल ऑलवेज क्लोजेज इन ईयर एंड। चलो आ जाओ नेक्स्ट, पहला ऑप्शन पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1500 रुपया टू बीज कैपिटल 1500 रुपया, being B's share of profit up to the date of that credited to him, and second दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, दो में से कोई भी एक ही एंट्री पास होगी, दोनों पास मत कर देना। दूसरा गेनिंग पार्टनर डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 450, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1050, टू बीज कैपिटल 1500, being B's share of profit up to the date of that credited to him and debited to gaining partners in their gaining ratio. किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? Any sorry, anyone having any doubt? चलो नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या करेंगे? सेम जो रिटायरमेंट में किया था, जो डिसीज पार्टनर होगा उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, और जो भी अमाउंट रहेगा गुडविल का इट विल बी बोन बाय गेनिंग पार्टनर्स। तो मैजिकल एंट्री यहां पर यूज होगी। ठीक है, गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिंपल है, पढ़ लो एक बार, पढ़ लो। डन। ये मैजिकल एंट्री पूरे चैप्टर में बहुत काम आएगी आपको। वन एंट्री विच यू शुड लुक फॉर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज मैजिकल एंट्री, गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप यू गॉट दिस।
चलो नेक्स्ट। ना एक गुडविल का क्वेश्चन है, उसको बाद में करेंगे। डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर। अब डिसीज पार्टनर का जो भी शेयर है या उसका जो भी कैपिटल बचेगा वो कैसे दोगे? द अमाउंट पेएबल टू डिसीज पार्टनर कैलकुलेटेड आफ्टर गिविंग क्रेडिट फॉर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, reserves his share of goodwill shall be paid to his legal heir or executor. If however the amount due to the deceased partner is not paid, then section 37 of the Indian Partnership Act applies, जो हमने ऑलरेडी रिटायरमेंट में पढ़ा है। अब दोस्तों पूरा थ्योरी हो गया है। नाउ लेट अस सॉल्व फुल फ्लेज क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ठीक है, चार क्वेश्चन करने आज हमें, चार, मिनिमम 4 क्वेश्चंस टू बी डन टुडे। रेडी एवरीवन? चलो लेट स्टार्ट। इलस्ट्रेशन 11, द बैलेंस शीट ऑफ सीड प्लांट एंड फ्लावर as at 31st December 2019 was as under: trade payables 20,000, general reserve 5,000, capital seed plant flower asset, fixed asset, debtors, bills receivable, inventories, cash at bank. The profit sharing ratio was 5:3:2. On 1st May 2020, plant died. It was agreed that goodwill to be valued of 3 years, purchase of the average profits of 4 years, the profits were, ठीक है, ये पिछले 4 साल का प्रॉफिट, उसका एवरेज निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्म का गुडविल आ जाएगा। चेक करो कितना आ रहा है, बताना। गुडविल 10,000 प्लस 13,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 37,500 is firm's goodwill. Next, the deceased partner is to be given share of profits up to the date of death on the basis of previous year. previous year के बेसिस पे दे दो, तो ये 15,000, प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा आएगा, 15,000। कब गया ये, 1 मई के दिन गया ऊपर। तो दोस्तों कितने महीने जिया था, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने। तो दोस्तों 15,000 12 महीने का प्रॉफिट, तो 4 महीने का कितना, ये आ जाएगा 5,000। पूरे फर्म का प्रॉफिट, उसमें उसका शेयर दे देंगे। फिक्स एसेट टू बी वेयर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, ओके। A bill for 10,000 was found to be worthless. These are not to affect goodwill. इसका गुडविल का कोई लेना देना नहीं है। बिल्स 4,000 के थे, उसमें से 1,000 बैड डेट्स हो गए। वर्थलेस मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बैड डेट्स। A sum of 7,750 was to be paid immediately and the balance to be remain as a loan with the firm at 9% per annum as interest. इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, सीधा लोन में डाल देना है। इतना जितना भी देना आएगा डिसीज पार्टनर को, उसमें से 7,750 दे देंगे, बचा हुआ लोन रहेगा। सीड एंड फ्लेवर एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 3:2। कहाँ काम आएगा ये काम आएगा दोस्तों मुझे, ये काम आएगा मुझे फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं सेकेंड एंट्री यूज करता हूं, और फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल गिव जर्नल एंट्रीज। भले इन्होंने जर्नल एंट्रीज बोला है, लेकिन हमें सब कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। इलस्ट्रेशन 11 में आ जाएंगे, इलस्ट्रेशन 11 में आ जाएंगे, तो सब कुछ ओरली करेंगे इसमें अपन। वी आर गोइंग टू डू सब कुछ ओरली इसमें, ठीक है। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ओनली जर्नल एंट्रीज, कोई लेजर नहीं बनाएंगे हम लोग, और सबका कैलकुलेशन ओरली करेंगे, ठीक है।
चलो आ जाओ, बना लेंगे 1.5 पेज का फॉर्मेट, 1.5 पेज का फॉर्मेट बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलो शुरू करूं, शुरू करूं क्या? एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे सभी लोग। I'll be back in 2 minutes. चलो शुरू करते हैं। The balance sheet of seed plant and flower as at 31st December 19 was as under trade payables। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, इग्नोर। कोई बैलेंस शीट बनानी नहीं है, कुछ नहीं करना है, इग्नोर। जनरल रिजर्व 5000 बांट दो किस रेशियो में? 5:3:2। एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 5000 कैसे बटेगा? एक शेयर आ रहा है 500 रुपीज का, तो सीड 2500, प्लांट 1500 एंड फ्लावर 1000। टू सीड कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500, टू प्लांट कैपिटल अकाउंट 1500, टू फ्लावर्स कैपिटल अकाउंट 1000, being general reserve distributed to partners in their profit sharing ratio।
ठीक है। नेक्स्ट, कोई पार्टनर्स अकाउंट में डालना नहीं है क्योंकि पार्टनर्स अकाउंट बनाने के लिए बोला ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल सीड प्लांट फ्लावर डालने की जरूरत नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रही नहीं है। फिक्स असेट 40,000। क्या हो गया, फिक्स असेट का 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू फिक्स असेट्स 4,000, being fixed assets revalued on death of plant, being fixed assets revalued on death of plant. उसके बाद डेटर्स, डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट है क्या? नो एडजस्टमेंट, इग्नोर करो, कोई बैलेंस शीट बना नहीं रहे हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल कोई एडजस्टमेंट है क्या? यस, 1,000 का बिल्स रिसीवेबल वर्थलेस है, मतलब बैड डेट्स। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, revaluation account debit to bills receivable, being bills receivable revalued on death of a plant. ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैश एंड बैंक बैलेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, छोड़ देंगे। The profit sharing ratio was 5:3:2 on 1st May 2020, plant died and it was agreed that, ठीक है। गुडविल का वैल्यूएशन कितना हो गया? 37,500। अब 37,500 हमें क्या करना होगा? एडजस्ट करना होगा। ठीक है। क्या एंट्री होगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन कौन है पार्टनर? सीड प्लांट फ्लावर, सीड प्लांट फ्लावर 5/10। न्यू रेशियो पहले देख लेते हैं। ठीक है। व्हाट इज न्यू रेशियो? 3:2, 3/5, ये ऊपर गया, इसका 2/5। ओल्ड रेशियो क्या है? 5/10, 3/10 एंड गाइस 2/10। कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग 3/10 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि निगेटिव आ गया। ये कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/5 को, तो वो हो जाएगा 6/10। तो 6 - 5 1/10 गेनिंग रेशियो। इसको भी वैसे ही कर दूंगा, इसको भी वैसे ही कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 × 2 4, 4 - 2 2/10 गेनिंग रेशियो। सो गेनिंग रेशियो विल बी 1:2। तो दोस्तों जर्नल एंट्री क्या आएगी गुडविल की? चेक। कौन कौन है गेनिंग? सीड कैपिटल अकाउंट डेबिट, फ्लावर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा प्लांट का? प्लांट को कितना देना है? 37,500 इंटू 3/10, 11,250 रुपया। और कौन बियर करेगा? सीड और फ्लावर। किस रेशियो में? 1:2। तो 11,250 डिवाइडेड बाय 3 × 1। सीड 3750 और फ्लावर 7,500। being goodwill adjusted on death of a plant, being goodwill adjusted on death of a plant. उसके बाद नेक्स्ट, डिसीज पार्टनर का शेयर दे देना है अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है। 15,000 पूरे साल का आया पिछले साल, तो 15,000 12 महीने के लिए, तो इस साल 4 महीने का कितना? 5,000।
5,000 ये पूरे फर्म का है, उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर कितना होगा, इट विल बी 3/10, 1,500 रुपया दे दो, 1,500 रुपया। दो ऑप्शन है मेरे पास, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,500, टू प्लांट्स कैपिटल अकाउंट 1,500, being deceased partner share up to the date of death credited to him। ठीक है, उसके बाद फिक्स असेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड, ये हो गया, और जितना भी डिसीज पार्टनर को देना है उसमें से 7750 देना है। ठीक है, पूरा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। कितना लॉस हुआ है दोस्तों, इधर 4,000 का फिक्स असेट में और बिल्स रिसीवेबल में 1,000 का, 5,000 का लॉस हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सीड कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्लांट कैपिटल अकाउंट डेबिट, फ्लावर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना लॉस हुआ, 5,000, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 5,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, 2,500। सीड को डेबिट होगा, प्लांट को डेबिट होगा 1,500 रुपया, और फ्लावर को होगा दोस्तों 1,000 रुपीज। Being loss on revaluation debited to all partners। अब टोटल कितना रुपया देना है प्लांट को। नाउ दिस इज वेरी केयरफुल, इधर ध्यान देना, कैलसी लेना अपना हाथ में, कैलसी लेना हाथ में। प्लांट को कितना टोटल देना है, 15,000 रुपया कैपिटल का। ठीक है, फिर रिजर्व में उसका शेयर, रिजर्व में उसका शेयर कितना था, 1,500 रुपया। फिर गुडविल में उसका शेयर, गुडविल में शेयर कितना था उसका, 11,250। फिर प्रॉफिट में उसका शेयर, प्रॉफिट में शेयर कितना था उसका, 1,500 रुपया। और फिर उसमें से रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस करना है जो वो बियर करेगा, 1,500 रुपया। तो दोस्तों कुल मिलाकर कितने रुपए प्लांट को देना है ऑन डिसीज्ड देखेंगे। उसके एग्जीक्यूटर को कितना देना है, 15,000 प्लस 1,500 प्लस 11,250 प्लस 1,500 माइनस 1,500, कुल मिलाकर 27,750 रुपया देना है। ठीक है, 27,750 रुपया देना है। एंट्री आ जाएगी, प्लांट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्लांट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,750 टू प्लांट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 27,750। अब ये एग्जीक्यूटर को 27,750 रुपए कैसे दे रहे हैं हम लोग, उसमें से दोस्तों 7,750 अभी दे देंगे और बचा हुआ 20,000 वो लोन होगा, वो लोन होगा। एंट्री, फाइनल एंट्री गाइस, फाइनल एंट्री, प्लांट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 27,750 टू बैंक अकाउंट 7,750 टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 20,000, बीइंग अमाउंट पेड टू प्लांट्स एग्जीक्यूटर। समझ में आया क्या सभी को? I hope everyone got these। किसी को कोई शक? चलो फैंटास्टिक, नेक्स्ट। इलस्ट्रेशन 12 इज टू बी डन एज होमवर्क, होमवर्क करेंगे। इलस्ट्रेशन 12 होमवर्क,
इलस्ट्रेशन 13 पर आ जाएंगे। कम टू इलस्ट्रेशन 13 एवरीवन। कम टू इलस्ट्रेशन 13। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। रेडी एवरीवन? रेडी एवरीवन? चलो ध्यान दो। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट of a firm consisting of three partners A, B, and C who share profits in the proportion of 1/2, 1/4, and 1/4, and whose capitals are 10,000, 6,000, and 4,000. PSR क्या है दोस्तों? 2:1:1. Agreed everyone? Agreed everyone? PSRE is 2:1:1 और उनके कैपिटल है 10,000, 6,000, 4,000. That partners must be allowed interest at the rate of 10% per annum on their fixed capital, but no interest is to be allowed on undrawn profits or charge on drawings. ठीक है, कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट दे दो, लेकिन ड्रॉइंग्स पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है. That upon the death of a partner, the goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of the average net profits after charging interest on capital for the 3 years to 31st December preceding the death of a partner. ठीक है, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, उसका 2 years परचेज करना है, and that profit should be after charging interest on capital. Okay. That an insurance policy of 10,000 each is to be taken in the individual name of the each partner. The premium is to be charged against the profit of the firm. मतलब हर एक पार्टनर का SLP होगा और मेथड नंबर 1 यूज होगा, because it is given it will be charged against the profit of the firm. That means any premium paid will be treated as an expense. Up to the death of a partner, he is to be credited with his share of profits, interest on capital, calculated upon 31st December following his date. Very important. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पार्टनर की डेथ होने के बाद उसको उसका शेयर मिलना चाहिए प्रॉफिट का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 31st दिसंबर. चाहे वो कभी भी जाओ, वो 1 जून को जाओ, 1 जुलाई को जाओ, 1 सितंबर को जाओ, उसको प्रॉफिट और उसको इंटरेस्ट पूरे साल का मिलेगा अप टू 31st दिसंबर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन. That the share of partnership policy and goodwill to be credited to deceased partner as at 31st December following his death. ठीक है, चलो great. That the partnership books are to be closed on 31st December. A died on 30th September, लेकिन प्रॉफिट पूरा 31st दिसंबर तक मिलेगा, इंटरेस्ट भी पूरा 31st दिसंबर तक मिलेगा. The amount standing to his credit of current account as on 31st December 18 was 450, and from that to the date of death he has withdrawn 3,000 from the business. An unrecorded liability of 2,000 was discovered on 30th September 19. It was decided to record it and immediately pay off. ठीक है, loss. The trading result of the firm before charging interest on capital has been 2016, 2017, 2018 and 2019. Now गुडविल के लिए कौन से 3 साल पकड़ने हैं? पिछले 3 साल. गुडविल के लिए प्रीसीडिंग टू दी डेथ 3 साल पकड़ने हैं. ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया. ठीक है. Assuming the surrender value of the policy to be 20% of the sum assured, prepare an account showing an amount due to A's legal representative
ऑन 31 दिसंबर। तो दोस्तों ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट बनाना पड़ेगा और वर्किंग नोट भी बनेंगे। वर्किंग नोट कौन से बनेंगे? प्रॉफिट का ट्रीटमेंट अप टू द डेट ऑफ डेथ, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट और फिर एसएलपी का भी ट्रीटमेंट। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आ जाओ दोस्तों, बनाओ फॉर्मेट। लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट अराउंड हाफ पेज, एज कैपिटल अकाउंट अराउंड हाफ पेज, ascertainment of value of firm's goodwill and A's share in it, फॉर्म की गुडविल और उसमें ए का शेयर, ए कौन है? डिसीज पार्टनर। थर्ड, ascertainment of profit to be credited to deceased partner, डिसीज पार्टनर को कितना प्रॉफिट जाएगा? अराउंड 6 लाइन्स। एंड एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एसएलपी, एसएलपी के एडजस्टमेंट के लिए अराउंड 6 लाइन्स। सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, सिर्फ डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाना है, दैट्स इट। Ready with the format everyone? चलो नेक्स्ट। चलो आ जाते हैं। The partnership agreement of a firm consisting of 3 partners A, B, C who share profits and loss in the ratio of 2:1 and whose fixed capitals are 10,000, 6,000 and 4,000। सिर्फ ए का कैपिटल कितना है? 10,000 लिख देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। फिर उसके बाद द पार्टनर इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम ऑन देयर फिक्स कैपिटल बट नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड। 10,000 पे 10% पूरे साल का मिलेगा, हमने नीचे ही पढ़ लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का मिलेगा, तो 10,000 पे 10% 1,000 लिख देंगे दोस्तों। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 पूरे साल का मिलेगा, उन्होंने बोल दिया है। अगर वो सेंटेंस नहीं होता तो केवल 9 महीने का देते, केवल 9 महीने का देते। नेक्स्ट, that upon the death of a partner the goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average net profit after charging interest on capital for the 3 years। गुडविल का कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, एक साल का कितना इंटरेस्ट जाएगा? टोटल 20,000 का कैपिटल है, 10,000, 6,000 और 4,000, तो 20,000 इंटू 10%, 2,000 रुपया प्रॉफिट में से माइनस होगा, एवरेज प्रॉफिट में से हर साल का 2,000 जाएगा। तो 2016 का 9640, 2017 का 6720 और तीसरे साल का लॉस है 640। एवरेज प्रॉफिट कितना निकल रहा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 9640 प्लस 6720 माइनस 640, 15,720 रुपया। उसमें से क्या कर देंगे? 2,000 माइनस कर देंगे। कितना हो गया वो? नहीं 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 नहीं, एवरेज निकालना है पहले। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 15,720 डिवाइडेड बाय 3,
तो 15,720 डिवाइडेड बाय 35240, उसमें से 2,000 माइनस करेंगे। 3240 इज द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। नहीं, 3240 तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना है? 2 ईयर्स परचेज इंटू 2 ईयर्स, 6480। अब आया परफेक्ट। ना पहले समझना दोस्तों, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आया 5240, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर एक साल का 2000 है, मतलब एवरेज में से ही माइनस कर रहे हैं हम लोग। एंड गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, बचा कितना? 3240, उसको 2 ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 6480। समझ में आया क्या सभी को? समझ में आया क्या सभी को? बोलते क्या आज के दिन? चलो चेक करो दोस्तों, गुडविल का एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 2 में आ जाना। वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, कितना आ जाएगा? 3240। अब 2000 हर एक साल में से माइनस कर सकते हो, या उसका एवरेज निकाल के 2000 माइनस कर देना एक साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वन एंड द सेम। इज दैट फाइन? पहले एवरेज निकाल लो, फिर 2000 माइनस कर लो, या फिर हर एक साल के इसमें से 2000 पहले माइनस करो, फिर उसका एवरेज निकालो, आंसर रिमेन्स सेम, एब्सोल्युटली सेम। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल 6480। लेकिन ये किसका गुडविल है? पूरे फर्म का। डिसीज पार्टनर का शेयर क्या है उसमें? 2/4। तो लिख देंगे दोस्तों, लिख देंगे शेयर ऑफ ए इन फर्म्स गुडविल 6480 इन डिवाइडेड बाय इंटू 2/4, 6480 इंटू 2/4, 3240 उसका शेयर आ जाएगा। लिख देंगे उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय बी एंड सी कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल 3240। ठीक है, नेक्स्ट। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा, that an insurance policy of 10,000 is to be taken in individual names of the partner, the premium is to be charged against the profit of the firm। उसकी पॉलिसी मैच्योर हो गई, और बचे हुए दोनों पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू कितना है? 20%। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 10,000 उसकी पॉलिसी का, और बचे हुए दोनों पार्टनर का, बी और सी का, 2,000 प्लस 2,000, तो कुल मिलाकर 14,000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आ जाओ दोस्तों, एसएलपी का ट्रीटमेंट। सो अमाउंट ऑफ एसएलपी टू बी एडजस्टेड, 10,000 ऑफ एस पॉलिसी क्योंकि वो मैच्योर्ड हो गई, 2,000 ऑफ बीस पॉलिसी एंड 2,000 ऑफ सीज पॉलिसी, कुल मिलाकर एडजस्ट करेंगे 14,000। 14,000 में उसका शेयर कितना होगा? 14,000 इंटू 2/7, 2/4, सॉरी, 14,000 इंटू 2/4, 7,000। आई होप यू गॉट दिस। किसी को कोई शक? किसी को कोई प्रॉब्लम? लिख देंगे दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय शेयर इन एसएलपी 7,000, बाय शेयर इन एसएलपी 7,000। नेक्स्ट,
सर बिकॉज अपनी पॉलिसी कंटिन्यू कर रहा है। यस, सिर्फ हमको यहाँ पे ए के शेयर की बात करनी है, दैट्स इट। हमको सिर्फ ए का देखना है यहाँ पे, ए को कितना मिलना चाहिए, उसको इतना मिलेगा, चाहे पॉलिसी सरेंडर करो या मत करो, उसको उतना शेयर मिलेगा, उतना ही हमें यहाँ देखना है। महक, आई होप यू गॉट दिस। Up to the date of partner, he is to be credited with his share of profits, interest on capital calculated up to 31st December following his death। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 2019 का प्रॉफिट? 2019 का प्रॉफिट कितना है? 3670। इसमें से 2000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला जाएगा लाइक एवरी ईयर। बचा कितना? 1670 रुपया। भले ही उसकी डेथ 30 सितंबर को हुई, लेकिन क्वेश्चन ने मुझे क्लियरली बोला है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आप प्रॉफिट पूरे 12 महीने का दोगे। ठीक है, तो इंटू 2/4 कर देना है। यह आ गया उसका शेयर 1670 इंटू 2/4, 835 रुपए आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्किंग नोट में असर्टेनमेंट ऑफ अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू डिसीज पार्टनर। प्रॉफिट फॉर 2019 आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1670 और 1670 में ए का शेयर 835 रुपया। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या सभी को? आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। किसी को कोई डाउट? चलो बढ़िया। लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 835 रुपीज, 835 रुपीज। दैट द शेयर ऑफ पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल इज टू बी क्रेडिटेड। हो गया, दे दिए दोनों भी। नेक्स्ट, पार्टनरशिप बुक्स आर क्लोज ऑन 31st दिसंबर। हो गया। नेक्स्ट, ए डाइड ऑन 31st दिसंबर 19। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट वाज 450। उसके करंट अकाउंट में 450 थे, वो क्या करेंगे अब? कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। करंट का बैलेंस कैपिटल में डाल देंगे, तो एंट्री होगी एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय एज करंट अकाउंट, buy is current account 450 rupees, buy is current account rupees 450। and from date to the date of that he has withdrawn 3000 from the business। जब भी पार्टनर विड्रॉ करता है, एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश पब्लिक बैंक। लिख देंगे उसके डेबिट साइड में टू ड्रॉविंग्स 3000, टू ड्रॉविंग्स 3000, टू कैश पब्लिक बैंक भी लिख सकते, ब्रैकेट में ड्रॉइंग्स डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। An unrecorded liability of 2000 was discovered on 30th September। It was decided to record it and immediately pay off। मतलब 2000 का लॉस हो गया भाई, 2000 का रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, लेकिन उसमें ए का शेयर कितना है? इंटू 2/4। 2000 इंटू 2/4, 1000 रुपया। क्या हो जाएगा वो? रिवैल्यूएशन का लॉस। लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएंगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 1000 रुपया। चलो परफेक्ट, फैंटास्टिक गाइस। द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 16, 17, 18, 19। कर लिया।
सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी 20%, ये भी कर लिया। इंटायर क्वेश्चन कंप्लीटेड गाइस, क्लोज कर देंगे। अमाउंट आ जाएगा जो हमें एक के एग्जीक्यूटर को देना है। क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे, 10,000 प्लस 1,000 प्लस 450 प्लस 3240 प्लस 835 प्लस 7,000, 22,525। डेबिट साइड में भी लिख दूंगा 22,525 माइनस 3,000 माइनस 1,000, 18,525 टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 18,525। किसी को कोई शक? किसी को कोई शक दोस्तों? एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो ऑफ अ प्रीवियस ईयर एग्जाम। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों, आ जाओ फटाफट। B and N were partners. The partnership deed provides inter alia that the accounts to be balanced on 31st December each year. ठीक है। Profits to be divided as follows: B 1/2 और B 1/2 and N 1/3, और बचा हुआ रिजर्व में 1/6 जाएगा। भाई रिजर्व में भी जाएगा तो रिजर्व आखिरी में बटेगा किस रेशियो में? 1/2 एंड 1/3। तो मतलब ये क्यों दिया गया है? आपको कंफ्यूज करने के लिए। इससे आपके पीएसआर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या रेशियो है? 1/2 एंड 1/3। डिवाइजर कॉमन करने के लिए इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा 2/6। कितना रेशियो हो जाएगा आपका? 3:2। कितना रेशियो हो जाएगा? 3:2। आई होप यू आर गेटिंग इट। समझ में आया क्या ये? That in the event of death of a partner, his executor will be entitled to the following: the capital to his credit up to the date of death, जितना उसका कैपिटल है वो दे दो। उसके his proportion of profit to the date of death based on the average profit of last 3 completed years, प्रॉफिट दे दो उसको ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। ये भी गुडविल भी पिछले 3 साल के बेसिस पे दे दो। कितना ईयर्स परचेज? 3 years परचेज। 3 years परचेज ऑफ व्हाट? लास्ट 3 years कंप्लीटेड प्रॉफिट्स। ठीक है। The trial balance as on 31st December 19 was B's capital, N's capital, reserve, bills receivable, investment, cash, trade payables total. The profit for the past 3 years were 42,000, 39,000 and 45,000 and died on 1st May। मतलब कितने महीने जिया वो? अप्रैल, मई नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने। Show the calculation of share of profits, share of goodwill, drop ends executor account as would appear in the firm's ledger, transferring the amount to his loan account। जो भी एग्जीक्यूटर में बैलेंस आएगा उसके लोन में डाल देंगे और हमें प्रॉफिट और गुडविल की भी वर्किंग बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ये रिजर्व का क्या करेंगे और बच्चों ने गड़बड़ कर दी। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक, चलो आ जाओ, बनाते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 14, बनाएंगे एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट 6 लाइन्स। एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट 6 लाइन्स। उसके बाद असर्टेनमेंट ऑफ एंस शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ 6 लाइन्स। फिर उसके बाद असर्टेनमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल एंड एंस शेयर इन इट अराउंड 6 लाइन्स। वर्किंग नोट बना लेंगे। असर्टेनमेंट ऑफ पीएसआर ऑफ बी एंड एन। वर्किंग नोट बना लेंगे। असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी एंड एन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। रेडी एवरीवन? करें शुरू। चलो लेट्स बिगिन। B and N were partners. The partnership deed provides the inter alia that the accounts to be balanced on 31st December, that the profits are to be divided as follows: 1/2, 1/3 and reserve। रिजर्व का कोई लेना देना नहीं है। इनका पीएसआर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। आ जाओ वर्किंग नोट में। B 1/2 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और सी नहीं, N का 1/3 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों का डिवाइजर कॉमन आ गया 6। नाउ गाइस पीएसआर 3:2 आ गया दोस्तों। इनका पीएसआर 3:2। नेक्स्ट, that in the event of death of a partner, his executor will be entitled to the following: the capital to his credit at the end of date of death, ठीक है, his proportion of profit up to the date of death, ठीक है, and his share of goodwill, ठीक है। नेक्स्ट, कौन गया ऊपर? ऊपर कौन गया? एन। तो ये बी का कैपिटल कोई काम का नहीं है, एन का कैपिटल काम का है। एन का कैपिटल डाल देंगे एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय एंस कैपिटल 60,000। रिजर्व में उसका शेयर कितना होगा? 30,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 12,000 रुपए रिजर्व में शेयर होगा। लिख देंगे बाय रिजर्व 12,000, बाय रिजर्व 12,000। बिल्स रिसीवेबल कोई काम का नहीं, इन्वेस्टमेंट कोई काम का नहीं, कैश कोई काम का नहीं, ट्रेड पेबल्स कोई काम का नहीं। नेक्स्ट, द प्रॉफिट फॉर द 3 years वेयर 42,000, 39,000, 45,000। ये हमें दो काम के लिए काम आएगा। पहला, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। तो निकाल लो दोस्तों, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years कितना आएगा? 42,000 प्लस 39,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया? 42,000। ये पूरे साल का प्रॉफिट। अब उसको करेंगे डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4, 14,000 रुपया फर्म का प्रॉफिट। फिर उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा?
42,000। ये पूरे साल का हो गया। 4 महीने का प्रॉफिट कितना? शेयर ऑफ एन इन प्रॉफिट 42,000, 42,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4, ये आ जाएगा फर्म का प्रॉफिट इंटू उसका रेशियो 2/5। 2/5 क्या रेशियो इसका? 2/5। 5,600 रुपया, 5,600 क्या करेंगे? दे देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 5,600। दोस्तों गुडविल, गुडविल का भी अमाउंट हमें देना होगा। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स निकालना है, जो कि 42,000 ऑलरेडी आ गया हमारा। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 इयर्स परचेज 42,000 इंटू 3 आ गया 1,26,000। उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर इंटू 2/5 50,400, ये आ गया दोस्तों। फिर से मेरा एवरेज प्रॉफिट 42,000, मेरा वैल्यू ऑफ गुडविल 84, नहीं 3 साल का है, 1,26,000, और उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर 2/5 50,400 लिख देंगे दोस्तों। बाय बीस कैपिटल अकाउंट गुडविल 50,400। इतना सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, इतना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे गड़बड़ करके आ गए। कितना जाएगा उसके लोन अकाउंट में? चेक करना। 60,000 प्लस 12,000 प्लस 5,600 प्लस 50,400, 1,28,000। इधर भी लिख दूंगा 1,28,000, पूरा की पूरा बैलेंसिंग फिगर टू एंस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 1,28,000। टू एंस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 1,28,000। किसी को कोई शक? बहुत सिंपल था, बच्चे गड़बड़ कर दिए, लेकिन चलो आई होप यू गॉट दिस। करें एक और क्वेश्चन? करें एक और क्वेश्चन? नो? सब लोग रिप्लाई करो, जिसके ज्यादा रिप्लाई आएंगे वो करेंगे अपन। सब लोग रिप्लाई करो। कितने क्वेश्चंस बचे हमारे? 17, 16, 15 3, और पहले का एक 4। ठीक है, चलो टुमारो क्लास विल बी एट 9 PM। कल सुबह नहीं होगा, कल सुबह नहीं होगा, कल रात में होगा क्लास 9 बजे। ठीक है, कल रात 9 बजे लेंगे। फिर ये कब खत्म होगा? कल मंडे के दिन एक क्वेश्चन होगा, कल एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, 16th वाला, मंडे 16th। ट्यूसडे के दिन नो क्लास, वेनसडे के दिन 10th और 15th, थर्सडे के दिन 17th। थर्सडे के दिन सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर अब थर्सडे के दिन कंप्लीट होगा। चलो ओके गाइस, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं वन शॉट रिवीजन फॉर एवरेज ड्यू डेट एट 3 PM। 3 बजे मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय बाय, हैप्पी संडे।